So we are starting, and actually, this will be the second last session on the teachings of Kyun Kunti, because after this there are three more verses: 41, 42, 43. So these three verses at the end will reflect the very deep state of desires and devotion of Mother Kunti, and then we will start with the prayers of the Bhishma Dev. Right? So let's recite this verse. इमे जनपदा श्रद्धाः सुपक्वशाधिविरुद्धः वनाद्रीन देवदलवन्तो ह्य एधन्ते तव वीक्षितैः. Mani Kunti कह रही हैं, so all the cities and villages are flourishing in all respects because the herbs and the grains are in abundance. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the ocean full of wealth. And this is all due to your glancing over them. So this is the translation. So Adyan, please read Purport. Yes, Prabhu, go ahead. Human propensity prosperity flourishes by natural gifts and not by gigantic industrial enterprises. The gigantic industrial enterprises are products of godless civilization, and they cause the destructions of the noble aims of human life. The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of human being, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general. Although a few only can live lavishly by exploitation. The natural gifts such as grains and vegetables, fruits, rivers, the hills of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of the Supreme. And he desires material nature produce them in abundance or restrict them at times. The natural law is that the human being may take advantage of these godly gifts by nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitive motive of lording it over material nature. The more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the reaction of such exploitative attempts. If we have sufficient grain, fruits, vegetables, and herbs, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetable to eat. The flow or river water fertilizes the field, and there is more than what we need. Minerals are produced in the hill and the jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, milk, etc., then why should it hanker after terrible industrial enterprises at the cost of the labor of some unfortunate man? But all these natural gifts are dependent on the mercy of the Lord. What we need, therefore, is to be obedient to the laws of the Lord and achieve the perfection of human life by devotional service. The indications by Kunti Devi are just to the point. She desires that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. So last time हमने जब पढ़ा था, तो we read that मदर कुंती भगवान से कह रही हैं कि प्लीज डोंट गो अवे, आप मत जाइए. और क्यों मत जाइए? उनकी रीजंस देती हैं. ये पहला रीजन देती हैं बिकॉज कुरुक्षेत्र का वॉर तो खत्म हो गया है, लेकिन कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म होने के बाद भी कई ऐसे इनमिकल किंग्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. दे वुड लाइक टू टेक द रिवेंज फ्रॉम अस. So वो रिवेंज लेंगे, so it is very difficult for us to survive. So please don't go away. That's the first thing she says. Second thing she says is, because of you, Krishna, there is all thing in our kingdom which is flourishing. तो उसकी डिटेल्स तो अभी नहीं बोली, वो आज के वर्ष में बोला, बट पीछे वाले में बताया था क्योंकि आपके फुटप्रिंट्स हमारे पूरे के पूरे राज्य में अलग अलग स्थानों पे है ना. इस कारण से क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी धन है, संपदा है, जो कुछ भी है, दैट्स ऑल ड्यू टू यू, बिकॉज ऑफ यू. एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट, बिकॉज वेन एवर कृष्णा इज देयर ना, देयर हैज टू बी opulence फॉर श्योर. जैसे भगवद गीता के लास्ट वर्स में भी ये बात संजय बोलते हैं ना, संजय वाचा, संजय सेज,
और क्या कहते हैं, यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहाँ पे श्री रहता है, श्री मतलब यस, श्री मतलब यस, तो कृष्णा, whenever Krishna is there, the Shri would be there with him. Shri means Mother Lakshmi, opulence। ये opulence होता क्या है, what is this wealth all about? So ये आज के वर्ष में बिकॉज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम किस मापदंड पे एक संपन्नता को नापते हैं, या सोसाइटी के एडवांसमेंट को मानते हैं, या हम ये जानते हैं या मानते हैं या जानते हैं कि समाज किस पैरामीटर्स पे एडवांस्ड माना जाता है, किस पैरामीटर्स पे, क्योंकि आज का पैरामीटर बहुत चेंज हो गया है। आज ही इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो देखा जाएगा कि जितना तेजी से जो डेवलपमेंट या डेवलप्ड नेशन का कंसेप्ट है वो यही है कि आपके पास कितना कुछ अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग कैश, लिक्विड कैश, परचेजिंग पावर, आपकी जीडीपी कितनी है कंट्री की, कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे कि चीज़ों को आकलन किया जाता है, निकाला जाता है। और उसको आज मॉडर्न टर्म्स में हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन्स, मोस्ट ऑफ अस आर स्टेइंग इन दिल्ली। तो इसमें क्या देखते हैं, व्हाट वी सी द ऑपुलेंस हियर, कि हमारे को कितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं एक कॉमन मैन के नज़रिए से। एक काम आम इंसान को भी कितना कंफर्ट है लाइफ में, कितनी गाड़ियाँ उसके पास, कितना घर है उसके पास, कितना अच्छा खाने को है उसके पास, कितना अच्छा पहनने को है उसके पास। और ऐसे ऐसे कुछ कुछ पैरामीटर्स हम आज की डेट में देखते हैं। या पैसे, लक्ष्मी को ले लें तो कितना पैसा है उसके पास, कितने उसके पास एसेट्स हैं उसके पास, कितना उसने बैंक डिपॉजिट्स कर रखा है, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सब मोटे मोटे मैंने आपको पैरामीटर्स बताए। बट महारानी कुंती यहाँ पे क्या कहती हैं कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, इमे जनपद श्रद्धा सुपोक्वशादि विरुद्ध वनाद्रि नद्योदनवंतो हे दंते तब विक्षित। नाउ दिस वर्ड विक्षित इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्लास से आप कुछ कैरी करके जाओ चाहे ना जाओ, आप एक शब्द जरूर करके के जाना, टेक अवे मैसेज, एंड दैट टेक अवे मैसेज इज विक्षित। इस विक्षित वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे संस्कृत में लिखा है ना, महारानी कुंती कहती है विक्षित मतलब वो सारी चीजें जिन पे कि भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान की दृष्टिपात करते हैं भगवान। सो विक्षित है, वो विक्षित है। अगर भगवान नजर डाल रहे हैं तो भगवान नजर डालने से क्या हो रहा है, जितने भी उनके ऑपुलेंसेज हैं वो रहेंगे ही रहेंगे फॉर श्योर। क्या क्या ओपुलेंसेस गिना रही है मदर कुंती, पहले शहर हमारे, उसके बाद हमारे को जो नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वो हर्ब्स, है ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट्स, हिल्स। हिल्स क्यों, क्योंकि हिल्स से ही अपने को मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं। मैं डिटेल में आऊँगा इसमें धीरे धीरे। देन रिवर्स, राइट, और उदयनवंत, उदयनवंत मीन्स सीज, समुद्र। हमारे एक्चुअली में संपदा इन्हीं सब चीज़ों से आती है। सो लेट्स सी टुडे कि वो संपदाएं कैसे और क्या आती हैं। सो स्मॉल प्रेजेंटेशन आई विल जस्ट शो यू। सो दिस इज प्रोविडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट, वैदिक विजडम वर्सेस नेचुरल, और नेचुरल वेल्थ वर्सेस एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्कार्सिटी। इसको हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में वेल्थ है कहाँ पे, वेयर डज लाई। समय के साथ ये चीज़ क्या होती गई है, खत्म होती गई है। आज की डेट में क्या है, इफ यू गो एंड सी द मॉडर्न पैराडॉक्स, वी हैव जाइजेंटिक एंटरप्राइजेस, यस, बट इट हैज़ अ वेरी डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हो रहा है कि नहीं समय के साथ, आप देखो तो, कि इफ यू सी द ग्राफ विच इज देयर, है ना, sorry, what it shows with the time, with the industrial progress, we see the industrial output is increasing, right, but the human vitality, it is going slowly down, down, down and down. And that's why if you see, Prabhupada has very beautifully put up कि the modern society है ना is a gigantic industrial enterprises. And despite this scale, we observe increasing social unrest and individual dissatisfaction. Rather than generating true wealth, these systems squeeze out the vital energy of human beings. Squeeze out समझते हैं ना, से जूस निकाल दिया हो, पूरा रस निकाल दिया उसके अंदर से, उसका चटनी बना दिया हो। इस प्रकार से लोगों से आज क्या होता है, काम कराया जाता है। और ये है सत्य है, आज हो सकता है सोफिस्टिकेटेड हम ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हो, बट होता सबका है, तेल सबके निकलते हैं, सबकी हालत खराब होती है काम कर करके।
आप मतलब यू जस्ट टेक एनी इंडस्ट्री, है ना, मे बी सिटिंग इन एन एयर कंडीशनर ऑफिस, बट स्टिल द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ एंजाइटी, द लेवल ऑफ आई विल से अनसर्टेनिटी फॉर द फ्यूचर, है ना, इज़ वेरी हाई। ये तो हम हो गया जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में वर्क करते हैं। आप ग्रॉस लेवल पे चले जाओ, जो वर्कर्स हैं माइंस में काम करना, उनका उनका ऑयल ड्रिलिंग्स जहाँ पे होती हैं, ओहो, उसके बाद खदानों से जब उसको कोयले निकालते हैं, जो टनल्स बनाते हैं पहाड़ों के नीचे, समुद्र के नीचे जाके खोज करते हैं, यू जस्ट टेक एनीथिंग, यू विल फाइंड कि जितनी भी एग्जांपल्स आप देखोगे, इट ऑल रियली स्क्वीज आउट्स द वाइटल एनर्जी द ह्यूमन बींग्स। और उस पे होता क्या है, इट क्रिएट्स अ सिविलाइजेशन वेयर ओनली अ फ्यू लिव लैविशली थ्रू एक्सप्लोइटेशन। कुछ ही लोग होते हैं जो लैविशली जीते हैं इसको, लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं, दे सफर। ट्रू, मैक्सिमम क्या होते हैं, सफर करते हैं। वाई दे सफर, बिकॉज उनको उतना नहीं मिलता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना, आपको चलो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दे देता हूँ। इवन इफ यू गो टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ना, let's suppose you are working in a service, you are working in a service sector, let's suppose. For your work, the company may be charging from its client maybe 20 or maybe 50 or $100 from the client per hour. अब आप मान लो 8 घंटे दिन के काम करते हो, तो डेट्स मेक्स इट $800, रफ अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ। और रफ एन आवर में लेता हूँ $1000 ले लिया, $100 मान लो आज की डेट में कीमत है, तो आपके एक दिन के काम के ₹1 लाख कंपनी बनाती है। लेकिन आपसे कितना ले सकती देगी, हो सकता है आपको मात्र 40 या 50 हज़ार रुपये दें महीने का। नॉट आई एम सेइंग कि ये आपको हायर एंड पे पूरे रोज का दे रही है। एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज वेरी सिंपल साइंस। आप कहीं भी जाओगे ना, किसी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, एंड इफ यू ट्राई टू फिगर आउट द डिटेल्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, आप देखोगे, अगर आपसे कंपनी आपको 50 हज़ार देती है ना, तो कम से कम आपसे 5 लाख से 10 लाख का काम निकालना जानती है वो। एंड दिस स्क्वीज आउट, लिटरली दिस स्क्वीज आउट ओवर टाइम, स्ट्रेस कराना, मेहनत कराना, और पता नहीं क्या 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 कराती है कंपनी। सो द पॉइंट इज व्हाट, दैट किल्स द वाइटैलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। याद रखिएगा इस बात को, बिकॉज फॉर ईच वन ऑफ अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द एनर्जी। दैट्स वाई मदर कुंती इन सब बातों को बोलती हैं, एंड दिस एक्चुअली सेज अबाउट व्हाट द सिविलाइजेशन इज ऑल अबाउट। नाउ व्हाट इज द ट्रू प्रॉस्पेरिटी? एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी होती क्या है? देयर वाज अ वेरी long back a talk which I heard of Chetan Charan Bose. So he was explaining the modern scarcity versus the Vedic prosperity. तो मॉडर्न टाइम्स में कितनी चीज़ें स्कार्स हैं, कितनी कम है, और वैदिक टाइम में कितनी प्रॉस्पेरिटीज होती थी, वो नेचुरली होती थी, जो नेचर देती थी। अब नेचर कैसे देती थी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आउट ऑल्सो। तो यहाँ पे मतलब कुंती क्या कहती हैं कि सारी के सारी सिटीज़ हैं, अभी क्या हैं, फुल मात्रा में वहाँ ग्रेन्स हैं, हर्ब्स हैं, हाँ, वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर्स, मिनरल रिच हिल्स एंड ज्वेल फिल्ड ओशंस। अब बताओ, इनमें से कोई भी चीज़ कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, नन ऑफ देम इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इनको पैदा नहीं करती, बल्कि इंडस्ट्रीज चलती इनके ऊपर है। लेट्स टेक द क्लीन वाटर एग्जांपल। इफ यू टेक अ क्लीन वाटर ना, एवरी इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ क्लीन वाटर फॉर इस इंडस्ट्री टू वर्क अपॉन। अब थर्मल पावर ले लो, इवन मैंने थर्मल पावर देखा था, हाउ द बिजलियाँ कैसे पैदा होती हैं। आप किसी बच्चे को बोलो कि बिजली कैसे तुम्हारे घर में बिजली कहाँ से आती है, तो बोलेगा वो ट्रांसफार्मर से आएगी, या स्विच बोर्ड ऑन कर दो अपने आप आ जाएगी। बट पूरा मैकेनिज्म आप जाके जब स्टडी करोगे ना, इट इज़ बिग लेबर देयर, बिग लेबर। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, देयर वाज अ प्लेस वेयर वर एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और वहाँ बिजली बनते देखा हमने। इतने बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, साफ पानी पहले चाहिए, साफ पानी को उबाला जाता है, उबालने के बाद सुपर हीटेड स्टीम होती है, वो स्टीम उसको टरबाइन पे फोर्स से डाला जाता है, एंड देन व्हेन टरबाइन रोटेट्स, दैट टरबाइन रोटेशन से वो बिजली पैदा होती है, सोचिए। और तो उसको करने के लिए कोयला चाहिए। हमारे यहाँ भारत में मेजोरिटी कोयले से पैदा होता है, मे बी न्यूक्लियर सोर्स पे धीरे धीरे जा रहे हैं, और बाकी सोर्सेज हैं, बट दे आर नॉट सो मच। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बट उतना नहीं कि इतनी सप्लाई आपको दे सके। बट मेजर चंक जो इंडिया में आता है ये। अब इसमें जो मेहनत करते हैं लोग ना, अब देखो इसमें जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
जस्ट पहला एग्जाम्पल पानी का लूँ, आप कोई भी गंदा पानी यूज़ नहीं कर सकते इसमें। यू हैव टू हैव अ क्लीन वाटर फॉर द मशीन्स। दूसरी चीज़, कोयला। कोयला कहाँ से मिलेगा आपको? वैसे इंडिया में अगर जाओगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब साइड्स में, तो मेन मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस वी हैव द ओपन कास्ट माइंस, बट कई जगहों पे वी हैव द अंडरग्राउंड माइंस ऑल्सो। इवन पहाड़ों के अंदर अंदर होती है माइंस, जिसमें से कि आप कोयले निकालते हो। तो ये भी हम नहीं पैदा करते, नन ऑफ अस मेक देम, राइट। इसके बाद आप ऑयल पे आ जाओ। आज ऑयल पे कितना वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, सो मच फाइट इज गोइंग फॉर ऑयल ओनली, है ना। आई बस रीडिंग थ्रू वन केस स्टडी कि भाई अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहता है। क्या रीजंस हैं? कोई रीजन नहीं, अटपटे रीजंस दे रहा है। लेकिन प्राइम को जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी अ, देख रहे हैं उसके पीछे, इट्स जस्ट द ऑयल। ओनली ऑयल इज देयर बिकॉज इट्स ऑल रनिंग द होल शो। इससे पहले भी उसने किया, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छा उसका वो है, एक फ्रेंडशिप है कह लो। इराक को ऑलरेडी उसने अटैक किया था ऑयल के लिए, एंड द लिस्ट गोस। और पता नहीं अफ्रीका में तो कितनी कंट्रीज हो, कहाँ कहाँ पे। वेंजुला, कुछ दिन पहले ही हमने सुना वेंजुला पे क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। द पॉइंट इज व्हाट, ये सब चीज़ें हम सब कहीं से भी किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं करते, राइट। ये सब हमें मिलती है नेचुरली, नेचुरल रिसोर्स गेट। नाउ अदर देन दिस वी हैव ज्वेल्स। अपने आप में कितनी कॉस्टली होती हैं ज्वेल्स, एनी ऑफ द ज्वेल्स वी टेक। अगर आप जानते हो ज्वेल्स के बारे में थोड़ा, so if you just take any of the jewels which we use, let's suppose we take pearl, we take sapphire, we take emerald, we take coral, सब जानते हो ना। इसमें अगर हम इसको हिंदी में बोलूँ मैं तो नीलम, पन्ना, है ना। इसके बाद मूंगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कई सारे ओशन के अंदर मिलेंगे, मोती को लेके मिलते हैं। तो कहने का मतलब, आई कैन जस्ट गो ऑन सेइंग, बट दैट्स नॉट डिटेल में नहीं है, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा मैं। जस्ट टू मेक दिस वन पॉइंट क्लियर दैट ऑल दिस थिंग्स कम बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। तो बाद एक पॉइंट जो सिग्निफिकेंट है इसमें पुट अप कर रहे हैं, दैट इज वाई शुड वी कीप एनिमल्स एंड किल देम, एंड वाई कांट वी सर्वाइव ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक सेन मैन, एक बुद्धिमान आदमी को सोचना चाहिए कि क्यों मैं पशुओं का वध करता हूँ, इतना पाप करता हूँ खाली अपनी जीवा की तृप्ति के लिए। वॉट आई शुड बी डूइंग इज, अगर मैं खाली फल फूल और सब्जी खा करके संतुष्ट रहूँ, so that's all what I need for my life is, so this is opulence actually, this is what is missing in the world। आज के लोगों के पास ना ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी है, they just lack, people are just lacking this spiritual insight, spiritual knowledge को lack करते हैं लोग। उनको नहीं समझ में आता है कि I am working so hard, I am tirelessly working so hard, but why the satisfaction in life is not there, जस्ट बिकॉज दैट वाइटल एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जा रही है व्यक्ति की इन ऐसी दौड़ में, जो अर्थ नहीं समझा रही जीवन का। अर्थ है क्या, व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? नेचुरली प्राप्त होता है अपने को। फॉर मोर एग्जाम्पल्स लेट्स सी, द वेल्थ ऑफ द हिल्स एंड द ओशंस, द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर fertilizes the fields, and minerals are produced in the hills and jewels in the ocean. So why should the human civilization hanker after terrible industrial enterprise when the nature provides these commodities freely? Now, एक चीज ध्यान देनी चाहिए एज अ स्पेशलिस्ट ना, वी शुड नो वन थिंग, मदर नेचर इज नॉट सिंपली अ डेड नेचर, इट्स नॉट डेड नेचर, इट इज लिविंग। ये लिविंग है एक्चुअली, इसका प्रमाण है बहुत सारी चीजों में। जैसे आप पढ़ोगे जब राजा पृथु का सेक्शन ना फोर्थ कैंटो में भागवतम के, तो बताते हैं वहां पृथ्वी ने अपने अंदर से बहुत सारे संसाधनों को देना बंद कर दिया था। उसका कारण वहां पे क्या बताती है मदर पृथ्वी, माता पृथ्वी बोलती है, क्योंकि राजा वेण जैसा जब राजा था ना वहाँ पे, तो ऐसे पापी राजाओं के होने से मदर अर्थ भी नहीं देती हैं जो उनको सफिशिएंटली देना चाहिए। इसीलिए आप देखो पास्ट में जितनी भुखमरी रही है और जितना कुछ भी वैसा रहा है, वो सब क्या रहा है? खाली पापी लोगों के कारण ही रहा है। इसीलिए राजा का सही होना और साथ साथ प्रजा का सही होना ही बहुत मैटर करता है, बिकॉज मदर नेचर नेवर गिव्स। हम सोचते हैं कि हम कोई रेवोल्यूशन ला करके नेचर से जितना चाहे उतना निकाल लें, ये सही नहीं है। आज हमें उसका वो मिल रहा है, रिवर्सल्स मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को समझोगे तो, जैसे पंजाब की बात करता हूँ मैं, तो वहाँ देखोगे आप, तो 1970 के दशक में
ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में खूब ऐसे बीज बनाए गए थे और ऐसी खाद बनाई गई थी जिससे प्रोडक्शन बहुत हाई चला गया था। ये यूरिया वगैरह जो आज हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये सब उसी समय भारी मात्रा में निर्माण किए गए थे। तो खूब प्रोडक्शन हुआ। उस समय तो बात होता था कहने का कि इट्स द ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया, पंजाब खास करके, क्योंकि पांचों नदियां बहती हैं वहाँ से, इतना पानी है, इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे, इतना कुछ है वहाँ पे। तो कहना ही क्या फिर तो। अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन अलग है। अब जाके आप पंजाब में पूछो, इतना खाद डाल दिया है कि अब जमीन उपजाऊ नहीं रह गई है। अब उस जमीन से उस लेवल पे चीजें पैदा नहीं हो रही जितनी पहले पैदा होती थी। इसलिए वो एमएसपी डिमांड करते हैं कि भैया इतना हमको जरूर पैसा दो आप सरकार से हमारे प्रोडक्शन पे, है ना। क्योंकि अब प्रोडक्ट की ना वो क्वालिटी रह गई है, ना वो क्वांटिटी रह गई है। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जांपल था वाइट रेवोल्यूशन। ये भी पढ़ना, वाइट रेवोल्यूशन। खूब दूध पैदा करेंगे, खूब दूध पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? गायों को इंजेक्शन दे दे के पैदा करेंगे। ठीक है ना। तो जब इंजेक्शन दे के आप पैदा कर रहे हो, जबरदस्ती दूध को पैदा कर रहे हो, वो दूध एक्चुअली में बेनिफिट नहीं करता किसी को। दूध बेनिफिट नहीं करता, लेकिन बताते हैं ऐसा। बताया जाता है कि जैसे गाय के आप देखोगे चार थन होते हैं, है ना। तो चार थन क्यों होते हैं? नेचुरली वो बनाए किस लिए कि दो थनों से वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। दो थन का दूध कहा जाता है बच्चे के लिए होता है, और दो थन का दूध जो बचता है वो मनुष्यों के लिए होता है। तो बहुत थोड़ा सा, आप गाय से बिजनेस नहीं कर सकते। एक्चुअली होता है कि हमारे डिवोटी कम्युनिटी में भी जितनी गौशालाएं चलती हैं सब धराशायी हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। नहीं चलती, क्यों नहीं चलती हैं? कारण उसका ये होता है कि व्हेन यू मेक काउ एज अ सोर्स ऑफ योर बिजनेस ना, नहीं चलता है वो। तो शी इज अ मदर, यू कांट डू बिजनेस विथ योर मदर, राइट। यू कैन डू अ बिजनेस विथ योर मदर। आप गाय को केयर कर सकते हो, यू कैन कीप हर। और जिनकी इतनी इच्छा, उनकी जितनी इच्छा उतना वो दूध दे सकती हैं। बट ये उस तरह से काम नहीं करता जैसे हम सोचते हैं। तो सेम चीज विद द मदर अर्थ ऑल्सो। मदर अर्थ इज अ लिविंग अर्थ है, पृथ्वी अपने आप में एक जीवित है। तो वो देती कब है, ध्यान से समझिएगा बात को, जब उनकी इच्छा करेगी तब देंगे। आप उनसे एक्सप्लॉइट करके नहीं निकाल सकते। इफ यू ट्राई हार्ड, मैं उनसे जितना एक्सट्रैक्ट करके निकालो निकालो निकालो, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता वो चीज़। इसीलिए क्या हो रहा है, उसकी उसकी कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं हमारे स्टेट में। The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, the more there will be unrest. And the gigantic internet enterprise is labeled a product of a godless civilization. It acts as a drain on human vitality, destroying the noble aims of life while benefiting only a select few. This is the very, very, very fundamental thing which we know. And that's the trap of exploitation. कैसा एक्सप्लोइटेशन का ट्रैप? कैन अंडरस्टैंड, कार्मिक लूप है कैसा? जैसे कि विम्स ऑफ एंजॉयमेंट एक्सप्लोइटेशन। एंड जब विम्स होता है ना कि मेरे को दुनिया को एंजॉय करना है, भोगना है, देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज डोमिनेट द नेचर। उसको डोमिनेट करने की कोशिश, डोमिनेंस करते हैं तो वो रिएक्शन देती है, रिवर्सल। इस दुनिया के अंदर हर चीज रिएक्शनरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो लाइफ विल बिकम वेरी वेरी पीसफुल। बहुत पीसफुल हो जाएगी आपकी लाइफ, अगर आप ये सिंपल चीज समझ जाओ तो। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड when approached with an enjoying spirit certainly bounce backs, reverse backs। और फिर व्यक्ति को लगता है कि क्यों इतना दुख मेरे जीवन में आ रहा है, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट इट, बट व्हाई इज इट कमिंग इन माय लाइफ। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, विल कम टू अ वेरी वेरी डीपर लेवल एंड अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत डीपली हम समझ पाएंगे। बात समझिएगा, ये आपको दुखी करने के लिए नहीं बताया जा रहा है बात। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि हमारी नजरें खुली, अब आँख खुलनी चाहिए हमें। क्यों आँख खुलनी चाहिए? बिकॉज द मोर वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट द नेचर ना, आप बनते जाओगे उसमें। यू विल बी ट्रैप्ड, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड एंड ट्रैप्ड। आपको पता नहीं चलेगा आप कैसे ट्रैप हो गए। बहुत मुश्किल है ये चीज़ समझ पाना। बट बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जैसे आप सब हो, कि यू आर ट्राइंग एन अटेम्प्ट टू मेक एन अटेम्प्ट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ का टैक्स है, हर चीज़ की कीमत है, नो थिंग इज फ्री। So when we are trying to attempt to dominate a nature ना, it has a reaction, it has a suffering। और ये आगे जाके entrap करती है। इसी को टेक्निकली कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि ना हो, आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत ही जी पाओगे।
अगर आप वो कंडीशन आपकी लाइफ से हटा देना, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव, आप रह नहीं पाओगे, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव. दैट्स व्हाई द मोर वी टेंड टू एक्सप्लोर मेटल नेचर according to our whims, the more we become entrapped by the reaction. Thus, the true freedom is found in cooperation and not domination. Now, the most important point after all this analysis, जितने analysis हमने की, उसका सबसे केंद्र बिंदु क्या है? Now try to focus here now. अगर आप ये समझ गए, then you have done. क्या महारानी कुंती कहती हैं? तब विकसित है. तब विकसित है का मतलब होता है भगवान आपके ग्लांस देखने मात्र से. इसीलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी कृपा कटाक्ष बनाए रखो, ठीक है ना. राधा रानी की प्रार्थना में भी आता है ना, स्वयं शिव जी प्रार्थना करते हैं ना, राधिका कृपा कटाक्ष. तो वो अलग प्रकार की बात है, वो तो ऊंची भक्ति की विषय है. लेकिन एक संसार को भी अगर सही से चलना हो ना, ग्रो करना हो, तो भगवान के बहुत कृपावश क्या चाहिए? ग्लांस चाहिए. वो नहीं होगा ना, द थिंग वोंट वर्क लाइक दैट. अब से देखो ना, आप कितनी भी चीजें मेहनत कर लो, ओनली द हार्ड वर्क डजंट ब्रिंग्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. डू यू एग्री? अगर ऐसा ही तो ऐसा ही बात है ना, क्योंकि अगर आप खाली मेहनत से थोड़ी प्राप्त करते हो हर चीज़ों को, आपको डेस्टिनी भी फेवर करनी चाहिए. मान लो मैंने खेती की, खूब खेती की, खूब खेती की, खूब अच्छे से मैंने जमीन को खोदा, और मैंने बीज भी डाला अच्छा, लेकिन बारिश मेरे हाथ में नहीं है ना. मैं बारिश नहीं करा सकता ना. अभी पीछे ना दिल्ली में देखा ना, सरकार ने कितना कोशिश किया पोल्यूशन कम करने के लिए बारिश कराया जाए. आर्टिफिशियल रेन के नाम पे कितना कुछ प्रयास जारी था यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ इतने. आज जब भगवान की इच्छा थी तो इतनी बारिश हो गई, है कि नहीं, इतनी बारिश हो गई, तो अपने आप देखो चीज़ें ठीक हो गई. तो ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर है ना. पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसीलिए साइंस, ये तो एक एक्सटर्नली बता रहा हूँ. इंटरनली हमारे सिस्टम के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें फिट की हुई है ना, विच आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द डेमी गॉड्स. फिर भी ये सब भगवान की कृपा से ही चलती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो इसीलिए कहते हैं प्रॉस्पेरिटी इज नॉट एक्सीडेंटल नॉर सोनली द रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफी. द मेंटेनेंस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर रिक्वायर्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. भगवान की बहुत कृपा चाहिए, बिना भगवान की कृपा के नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि खाली ये हमारी मेहनत से प्राप्त होगा. ये बात एकदम सहन में बैठना चाहिए अपने को, कि ऐसा नहीं है कि एकदम मेहनत से प्राप्त होती है. हम सबको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें हमारी मेहनत तो होती ही होती है, नो श्योर, नो डाउट. बट अगर भगवान की भी कृपा ना हो ना, डेस्टिनी का पार्ट ना हो, तो हमें जो भी वांछित रिजल्ट है ना, रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो नहीं प्राप्त होता है. तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. So basically, we must accept the natural gifts satisfactorily and flourish on them, avoiding the hankering for the artificial substitutes. The goal of society is spiritual perfection, not just material accumulation. And even if you require anything in your life, that's all provided by Krishna for sure in the life of a devotee. That's why the two models of civilization, if you see, the industrial model is driven by whims and exploitation. The Vedic model is driven by the obedience to the divine law. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. पहले के समय देखो, लोग को कुछ प्राप्त करना होता था ना, तो वो लोग ना इंडस्ट्री इंडस्ट्री नहीं बनाते थे, या कोई वो लोग ऐसा काम नहीं करते थे कि जिससे वो चीज़ को प्राप्त करे थे. उनके पास वो सिद्धियां प्राप्त होती थी देवताओं की तपस्या करके, वरदान के रूप में मिलता था उनको. तो इसलिए हर बड़ा से बड़ा असुर भी क्या करता था? तपस्या करता था पहले. हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, इन लोगों को भी कुछ प्राप्त करना था ना, ये सारे तपस्या करते थे. बिना तपस्या के नहीं प्राप्त होता था, तो क्योंकि वो भी लॉ फॉलो करते थे. आज संभव असुरों से भी ज्यादा खराब जीवन है, तपस्या तो करते ही नहीं है. फिर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, उसी पे सारा मेहनत करता है. साइंस भी मेहनत करता है, रिसर्च भी होती है. भारी रिसर्च होती है कि कितने ऑप्टिमाइज तरीके से आप भोग सको दुनिया को. नहीं. नेक्स्ट वन इज, क्या मेथड यूज करते हैं? व्हाट द मेथड इज यूज इन द मॉडर्न टाइम्स इज जायंटिक इंटरप्राइजेस एंड द स्लॉटर हाउसेस. इसका इस्तेमाल किया जाता है. बट मॉडर्न टाइम्स में क्या है ना, कि कॉपरेशन विद द नेचुरल गिफ्ट्स, रिवर्स, हिल्स, ग्रेन्स. ये क्या रिजल्ट करता है? व्हाट इज रिजल्ट्स इन scarcity, unrest, loss of vital energy, and that results, and the Vedic model के अंदर रिजल्ट क्या होता है? abundance, satisfaction, spiritual perfection. एक्चुअली इज अ ट्रू फैक्ट. पहले के लोग आप देखोगे ना, बहुत संतुष्ट होते थे.
They are quite satisfied in their life. But unfortunately, this is nowhere in the modern life. So, sustaining abundance is she desires that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. And the true sustainability is not technological, it is spiritual. By aligning with the laws of the Lord, uh, the natural prosperity of the earth is maintained. So that's the seven substance of मदर कुंती कि भगवान आप क्यों जा रहे हो छोड़ करके, बिकॉज आपके ही कृपा से हम सबको ये ऐश्वर्य प्राप्त है, ये ऐश्वर्य आपकी कृपा से है। तो भक्त का एक भाव यहाँ पे और देखने को मिलता है ना, द डिवोटी ऑफ कृष्णा इज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया है। अगर हम कंपेयर करेंगे दुनिया में ना तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। सारे डिससेटिस्फैक्शन का रूट कॉज है कंपैरिजन। कंपैरिजन, सी एवरीबडी हैज हिज ओन वे ऑफ लिविंग द लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर किसी का अपना एक तरीका है और अपना अपना डेस्टिनी हम सबको जो मिला है। एंड हर किसी की जीवन की ना एक अलग ही परीक्षा है। हम लोग दूसरे को नकल करके अगर परीक्षा लिखेंगे ना तो श्योर है फेल होंगे। द बेस्ट कोर्स ऑफ लाइफ इज डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को समझें, हु एम आई। हम सबको जानना चाहिए, ईच वन ऑफ अस। हम सब साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ इट? जस्ट टू नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानने के लिए कर रहे हो। द बेस्ट थीसिस बुक इज भगवद गीता। भगवद गीता अक्षरों में हम सबके लिए एक होगी, 700 वर्सेज है ना, हम सबके लिए एक होगी, अलग नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब मैं पढ़ूंगा या आप में से कोई भी पढ़ेगा, उसकी एक अलग रियलाइजेशन होगी और वो मैच नहीं खाएगी दो में। दो लोगों की मैच नहीं खाएगी। क्यों नहीं मैच खाएगी दो लोगों की? बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअलिटी के नाते हम सबको अपने आप को क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए, हु एम आई। और वो चीज को ढूंढते ढूंढते विल कम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम देखेंगे कि एक्चुअली इस सोसाइटी में, समाज में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी हु इज मेंटेनिंग अस। तब विकसित है। तब विकसित है मीन्स Krishna is the maintainer of each one of us in this world. Krishna maintains. For a devotee, especially, I will say, Krishna maintains personally. That's why it says in the Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, na, very interesting thing. He says, Tesha vinitya yukta nam yoga shema vahamam. Ananyas chintayanto mam ye jana pariyupasate. Tesha vinitya yukta nam yoga shema vahamam. Ananyas, अनन्य भाव से जब भगवान की भक्ति करता है ना, so Krishna personally comes and what he does brings whatever is required in your life. तो श्री संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य रहे थे, अर्जुन आचार्य। उन्होंने जब ये बात गीता की पढ़ी तो उनको विश्वास नहीं हुआ। बोला इसमें जो वर्ड है ना, योग क्षेम वहामी अहम, वहामी अहम, तो अहम शब्द ठीक नहीं है। भगवान क्यों आएंगे देने के लिए? भगवान अपनी शक्तियों से हमें दे सकते हैं ना। भगवान अपनी शक्तियों को बोलेंगे ये चीज़ दे दो, इसको दे देंगे। भगवान को आने की क्या जरूरत है हमारे पास? तो उन्होंने अपने हाथ से जो भी वस्तु इस्तेमाल की हुई है, जो उनके पास पेन रही होगी उस टाइम पे, उससे उन्होंने अहम शब्द काट दिया। उन्होंने अहम गलत है, गीता में गलत लिखा है अहम, ये गलत बोला भगवान ने गीता में, अहम नहीं हो सकता। ये तो भगवान किसी के माध्यम से दे सकते हैं। ये बात काट करके वो चले गए अपना स्नान करने नदी में। उनकी गैर हाजिरी में दो बालक आए। वैसे बहुत गरीब थे अर्जुनाचार्य, उनके घर में कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे वो। तो उनके घर में दो बालक आए। और दो बालक जब आए तो आकर के उन्होंने काफी सारा सामान दिया घर में उनकी वाइफ को, और बोला कि सब बनाना, ये सारा सामान अर्जुन आचार्य ने भिजवाया है। तो वाइफ बड़ी शौक हुई, बोला घर में पैसे तो थे नहीं इतने, वो कहाँ से इतने सारे सामान भिजवा दिए अर्जुन आचार्य ने? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, उनके पास कहीं से तो पैसे आ गए थे। फिर उन्होंने सामान खरीदा और बोला कि तुम लोग सामान दे आओ घर पे, मैं जाके स्नान कराता हूँ। वो फटाफट सामान देके जाने लगे। तभी उनकी जो भार्या थी, पत्नी थी, उन्होंने पूछा, एक लड़के के सर पे ऐसे निशान लगा हुआ था, चोट लगी थी सर पे। तो उन्होंने पूछा कि आपको चोट कैसे लगी है, सर पे क्या है? वो बोला आपके पति ने मारा मेरे को। आपके पति ने मारा मेरे को, तो उसके मारने से मेरे सर पे से चोट लग गई। तो वाइफ को बड़ा बुरा लगा, भाई तो आपने मारा क्यों? क्यों मारा? तो कारण नहीं बताया उसने, लड़के ने। चला गया ये बोल करके कि आपके पति ने मारा।
जब अर्जुनाचार्य नहा धो करके वापस आए तो उन्होंने देखा उनकी वाइफ बड़ा पकवान बना रही है, घर में इतना सारा आइटम बना रही है। उन्होंने पूछा, अरे ये सब क्या चक्कर है, ये कहाँ से आ गया, कौन लेके आया? तो वाइफ ने बोला, ये तो आप ही ने तो भिजवाया था 2 लड़कों के हाथ से सारा सामान। तो बड़े शौक हो गए, भाई मैंने तो किसी से कुछ नहीं भिजवाया है, ये कौन आ गया दोनों देने के लिए? तो फिर उनको समझ नहीं आया क्या चल क्या रहा है। फिर उन्होंने पूछा, लड़कों के बारे में बताओ। तो जैसे वो डिस्क्रिप्शन देना शुरू की, उसे पूरा प्रतीत होने लगा कि 2 लड़के कोई और नहीं, कृष्ण बलराम स्वयं थे। फिर एक स्पेशल बात उन्होंने बताई उनकी वाइफ ने, कि उनमें से एक लड़का जो था ना, उसके सर पे चोट लगी थी। वो चोट कैसी थी? वो चोट वो कह रहा था आपने लगाई है, आपने मारा है उसको। कृष्णाचार्य बहुत कंफ्यूज हो गए, ये हो क्या रहा है, ये लड़के कहाँ से आ गए, ऊपर से चोट मैंने कैसे लगा दी उनको, मैंने तो किसी को मारा भी नहीं, सर पे चोट लगी। तो सारे पजल्स को सॉल्व करने लगे वो ना, तब उनको समझ में आया हुआ क्या है। और जाके फिर से अपना जब वो गीता का पन्ना खोले, तो उन्होंने अपने पेंसिल से अहम शब्द को काटा था। और अहम शब्द काटने का मतलब क्या था, उन्होंने चोट किया था कृष्णा को। विश्वास नहीं था उनको कि कृष्णा क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे मेरे को। तो एज ए डिवोटी ना, हम सबको विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? ये विश्वास मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमें काम नहीं करना चाहिए, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, भगवान सब खिलाएंगे, भगवान सारा सामान ला के देंगे घर में, तो वो भी कर देंगे भगवान। लेकिन फिर उतने लेवल का बहुत फेथ चाहिए अपने को, बहुत फेथ चाहिए, उतना श्रद्धा बहुत मुश्किल होती है। फिर भी ये बातें क्यों बताई जाती हैं शास्त्रों में ना, मान लो आप अपना अथक प्रयास भी करते हो, खूब मेहनत भी करते हो, लेकिन सब मेहनत करने के बाद भी ना आपको आपका वांछित रिजल्ट नहीं मिलता लाइफ में, याद रखो, ध्यान से सुनना। आपको आपका वांछित रिजल्ट नहीं मिल पाता, मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद भी नहीं हो पाता, देन व्हाट यू शुड थिंक इज, कृष्णा विल गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। जो रिक्वायर्ड है ना मेरे लाइफ में, कृष्णा विल श्योरली गिव मी। सो आई शुड बी केयर फ्री एंड एंग्जाइटी फ्री इन लाइफ, बिकॉज एज अ चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। कृष्णा विल सफिशिएंटली मेंटेन मी। So that's what the sum and substance of today's talk is. Tam tam vivikshataye, tam vikshataye. That Krishna actually maintains. After this, if we go, we have three more verses, 41, 42, and 43, which expresses a very, very deep desire of Mother Kunti. Actually, what she wants. अब तक उन्होंने अपना अभिधेय नहीं बोला, अपना प्रयोजन नहीं बताया कि क्या चाहती हैं. So in the next class, we will cover these three verses, and then we will go to the prayers of Bhishma Dev. तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर क्लास विल बी नाउ, we will read different different prayers of Bhagavatam and try to understand the devotion what the devotees have expressed, and lot of learnings we will get from those prayers. Now there will be something which will be homework for all of you, which I am going to tell now. So let me stop this first. So what is the um, thing आपके साथ क्या है, what you have to need to do is